Hello everyone, welcome to today's video. In this video, I'll talk to you about what should be your last 10-day revision strategy for the upcoming INI-CT that is to happen on 7th May 2023. Now this video is intended for everybody who is preparing for INI-CT, whether you have gotten a good rank in NEET PG and you are thinking that you should prepare for INI-CT, whether you have gotten a bad rank and you are unmotivated, you are underconfident about your preparation, still this video will help you a lot. And thirdly, if you have no idea where to begin, do watch this video. I'll tell you some important points, how you should start your preparation at this point, and why for you also last 10-day revision strategy is a must. Okay, so just a brief introduction about me. I'm a 2012 batch Amesonian from AIIMS New Delhi. My name is Dr. Rishabh Jain, and I did my senior residency. I did my MD radiology from PGI Chandigarh and my senior residency from AIIMS Delhi. I secured a rank 4 in AIIMS PG back in July 2018 and a rank 11 in PGI Chandigarh entrance exam, from where I did my post graduation subsequently. So there will be four kinds of students at this point. NEET PG results announced a week back. So congratulations to all of you who have gotten a good rank. Heartiest congratulations, you deserved it. Now it's time to prepare for INI, and you should definitely prepare for INI even if you've gotten a good rank, because Central Institute will change your life. It will change the whole career path of yours if you get into a Central Institute, especially a good one. So do consider joining a Central Institute and preparing for a Central Institute, even if you think that you've gotten a good rank and you'll get a branch of your choice in NEET PG counseling. Take it as a plan B. It will keep your nerves calm. You'll prepare well for INI. You'll not be in a very fearful state. If you are someone who has not gotten a good rank in NEET PG, please don't get disheartened. You have a very good shot of doing well in May INI, because May INI is relatively easier than November INI in my opinion. I also got selected in May INI, and a lot less students appear for May INI, so overall competition is less in my opinion during May session. If you are unmotivated, you are thinking that syllabus is huge, I did not get a good rank in NEET PG, how will I crack a Central Institute that is INI? Please don't get disheartened. I'll tell you my story. So I got a rank 470 in NEET PG, and it is not a bad rank, but it's not a rank at which I thought that I'd get radio in Delhi colleges. Alright, so I buckled up, prepared for May INI, and I had only one motivation to do that I wanted to get into a Central Institute. So ये कीड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कीड़ा होगा कि भाई मुझे सेटल नहीं होना है नीट पीजी से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो ही निकाल पाओगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट. एंड बिलीव मी, it was so worth it. The amount of exposure that I got in a Central Institute, the alumni that I formed, the teachers and professors, the contacts that I have built from a Central Institute, it is uncomparable if you consider it from a NEET PG college. So do consider giving your exam for an upcoming May INI. And also there is no bond in a Central Institute. Yeah, you're free after 3 years of your training. You're not a slave to a government, state government to do a bond there. So you should definitely prepare for May INI this year. Now if you are underconfident कि भाई मुझसे नहीं होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट की पढ़ाई, मेरे बस के नहीं है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मैं यही डिजर्व करता हूँ स्टेट कॉलेजेस, भाई ये मेंटालिटी दिमाग से निकाल दो. सबके बस के है, सब कर सकते हैं. इन माई ओपिनियन INI बहुत आसान है नीट पीजी से क्रैक करना, बिकॉज स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है INI में. प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ही बार पूछे जाते हैं, थोड़ा ट्रिकी होता है, ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं, बट टॉपिक्स उनके फिक्स्ड हैं. ठीक है, तो अगर आपने मे INI के लिए टारगेट रख लिया है, एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स अब नीट पीजी और INI में 2 महीने का गैप था, अराउंड 2 महीने का, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब आपने जो नीट पीजी में पढ़ा है, अब आपको बस उसको कंसोलिडेट ही करना है. सो प्लीज़ डोंट बी थिंक कि भाई मेरे बस के नहीं हो पाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट. ट्राई करके देखो, बहुत वर्थ इट है. ठीक है. एंड फाइनली द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया वेयर टू बिगिन, INI के लिए करना है भी नहीं, सोचा ही नहीं था, तो टू ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड ऑल्सो से डू गिव INI CT. एटलीस्ट रीड 4 सब्जेक्ट्स दैट आई टेल यू. बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. यूल रियलाइज़ कि भाई इतना टफ नहीं है ये एग्ज़ाम क्रैक करना, बहुत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं. डू वॉच दिस वीडियो. आई थिंक
This will help you. So today is March 22nd when I'm uploading this video, and the exam is on 7th May. So you have around 44 days during this time, and for the last 10 days I've kept it for revision. ठीक है, ये last 10 day revision is of utmost important. ये करना ही करना है, इमटेरियल, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है अभी तक. सो वी हैव 34 डेज जिसमें हम सारा कंसोलिडेट करेंगे, राइट. लास्ट 10 डेज पूरे 19 सब्जेक्ट्स, ये जितना हो गया है वो सब दोबारा पढ़ेंगे. आई थिंक अभी तक क्लियर है. लास्ट 10 डेज में पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करना है, एंड 34 डेज में अभी हम कंसोलिडेट करेंगे जो हमने पढ़ लिया है, जो हमें पढ़ना है. ठीक है, तो इन 34 डेज में कैसे कंसोलिडेट करना है, क्यों कंसोलिडेट करना है? बिकॉज INI इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल एग्जाम. INI में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे. वो चीज़ पूछेंगे जो तुमने क्लिनिक्स में पढ़ी होगी, क्लिनिक्स में देखी होगी, या दे एक्सपेक्ट यू टू नो इन क्लिनिक्स. क्लिनिकल ओरिएंटेड सवाल आएंगे, नेक्स्ट स्टेप पूछेंगे, क्लिनिकल सिनेरियो देंगे, पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे. मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन होंगे कि एक रेडियो का क्वेश्चन होगा, उसमें बेसिक साइंस भी घुसा रखी होगी, उसमें मेडिसिन भी घुसा रखी होगी. सो बहुत ज़रूरी है इस 34 डेज में कंसोलिडेट करना नॉलेज. एंड कंसोलिडेट करने के लिए आई टेल यू 4 फैक्ट्स ऑफ INI. द फर्स्ट फैक्ट इज, आउट ऑफ द 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस विल बी डायरेक्ट रिपीट्स. ठीक है, डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट रिपीट्स, बट जो टॉपिक्स पहले पूछे गए थे सेम टॉपिक से दोबारा पूछा गया है. अराउंड 100 क्वेश्चन विल बी दोज, यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी क्विकली, बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा. 50 क्वेश्चन विल बी इनडायरेक्ट रिपीट्स. ठीक है, कि कुछ टॉपिक्स थे उसके पैरेलल टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आए हैं, बट दोज आर ऑल्सो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. एंड 50 क्वेश्चन विल बी दोज विच आर, जिनको आपको डिड्यूस करना होगा. ठीक है, मे बी द टॉपिक्स विल बी again that those were previously asked, maybe in previous 2012-2013 question bank, but still those topics would appear new to you in the exam, and for those 50 questions you would need option or deduction skills. But let me tell you that out of the 200 questions, if you are able to get 150 questions correct, ठीक है, you have 50 question, you have a margin of getting 50 questions wrong in my opinion. Okay, if you're able to get 150 questions correct out of the 200, believe me, you'll get a top 200 rank. ठीक है, इतना ही 50 क्वेश्चन का भाई लीवे है आपके पास, 50 क्वेश्चन का मार्जिन है, बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन गलत करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक कि आपको सारे क्वेश्चंस ठीक करने हैं. एग्जामिनर नहीं चाहता आप सारे क्वेश्चंस ठीक करो, छोड़ दो 1-2 क्वेश्चन, गलत कर लो कुछ क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस ही टारगेट रखो, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं हमें. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके 200 क्वेश्चंस हैं उसमें से 60%, so 120 questions out of 200 will be from first second prof. Okay, and this is a huge information and huge concept that should be in your mind कि भाई मुझे first second prof को ज़्यादा strong बनाना है, first second prof को ही target करना है. and first second prof के 7 subjects हैं, बस 6 subjects ही रह गए अब तो. anatomy, physiology, biochemistry, pathology, micro, pharma. ये 6 सब्जेक्ट्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली करेक्ट 100 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड फॉर द रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू गेट 50 क्वेश्चंस राइट. ओके, सो ऐसे सोचो कि भाई मुझे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं. अगर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देने लगोगे इस टाइम पर तो नहीं हो पाएगा सिलेबस कंप्लीट, एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड रैंक. फोकस ऑन फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ मोर. Out of 120 questions, please try to get 100 questions correct from first and second prof. 20 questions आते हैं first second prof के subject से. You'll get 20 questions from biochem, pharma, 20 from micro, 20 from path. तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ के, स्पेशली फॉर INI. And INI, fourth important point, is obsessed. It's obsessed with previous year topics. Okay, so what I did, I actually sat down, noted each question from the last 5 year of INI. I had made this table in this video कि last 5 year INI में मेडिसिन में कौन कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए. एंड बिलीव मी, यू वोंट बिलीव कि सेम ही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. कि कार्डियो में दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन. ECG पे ऑब्सेस्ड हैं, MI से ऑब्सेस्ड हैं, एसिड बेस बैलेंस से ऑब्सेस्ड हैं जनरल मेडिसिन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से ऑब्सेस्ड हैं. न्यूरो में स्ट्रोक ही पूछे जा रहे हैं बार बार. SH पे क्वेश्चन आया है, डीमाइलिनेशन डिसीज पे क्वेश्चन आया है.
सो टॉपिक्स लिमिटेड हैं आईएनआई के. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर एंड बिलीव दिस कि टॉपिक्स लिमिटेड हैं आईएनआई के. मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है. एंड इफ़ यू आर एबल टू ग्रास्प दिस कंसेप्ट कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो बहुत बहुत कामनेस आ जाती है अंदर की मुझे गिवन गिने चुने ही टॉपिक्स ही पढ़ना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको बार बार पढ़ना है. 3 चीज़ें, गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है उन्हें, और उनको बार बार पढ़ना है. ठीक है. सो इन 34 डेज में मेक योर प्लान कि मैं प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करूँगा, फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ एंड माइनर्स को ज़्यादा ध्यान दूंगा, मेजर्स को लात मार दूंगा. और ये फर्स्ट सेकेंड और माइनर्स पढ़ने कहाँ से हैं? रिविजन नोट्स. मेन नोट्स को लात मार दो सबसे पहले, मेन नोट्स नहीं पढ़ने हैं अभी, लात मार दो, फेंक दो उनको. रिविजन नोट्स पढ़ने हैं. अगर फर्स्ट एड पढ़ रखी है, फर्स्ट एड पढ़ लो. स्पेशली बायोकेम, माइक्रो, फार्मा, साइकी, इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे लगता है फर्स्ट एड बहुत अच्छी है. अगर टेस्ट एंड डिस्कशन लगा रखे हैं उनके नोट्स है तो वेल एंड गुड. आई थिंक टेस्ट एंड डिस्कशन बहुत हाई यील्ड होता है. उसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, दोज आर एसेंशियली दोज विच आर आस्क्ड प्रीवियसली. या अगर आपके खुद के कंडेंस नोट्स हैं, अपने मेन नोट्स को, अपने मेन कोचिंग नोट्स को कंडेंस कर रखा है, काट रखा है कि ये नहीं पढ़ना, ये मार्क कर रखा है कि यही पढ़ना है, टेबल्स बना रखी हैं, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है. प्लीज़, दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव डन दैट बिकॉज दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एफर्ट, टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. सो रिविजन नोट्स इन माई ओपिनियन, अगर कुछ सोर्स नहीं है, रिविजन नोट्स उठा लो किसी भी कोचिंग के. अगर कुछ नहीं कर रखा, फर्स्ट एड नहीं पढ़ रखा, टीएनडी नहीं पढ़ रखा, कंडेंस नोट्स नहीं है, रिविजन नोट्स उठा लो चुपचाप, बस खत्म. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, रिविजन नोट्स करो. इन माई ओपिनियन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो की फर्स्ट एड पढ़ लेना. सो बेस्ड ऑन दिस देर विल बी फ्यू सिनेरियोज कि आपके कंडेंस नोट्स हैं कोचिंग नोट्स के, सो बेस्ट ऑप्शन वही करना है. सेकेंड, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल वुड फॉल इन टू दिस कैटेगरी कि दे हैव read the bulky 10,000 notes during their third and fourth prof or sometime in their internship. कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट्स के पढ़ लिए नोट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं पढ़े, तो भाई बाकियों का क्या करें. तो मेन नोट्स को लात मारो, अब स्विच टू रिविजन नोट्स. फक फोमो, स्विच टू रिविजन नोट्स. अगर रिविजन नोट्स नहीं समझ आ रहे तो इन माई ओपिनियन फर्स्ट एड भी पढ़ सकते हो, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफ के लिए. डू रीड इट फॉर माइक्रो, बायोकेम, साइकेट्री, बायोस्टैट्स. इन माई ओपिनियन बहुत अच्छा दे रखा है, क्रिस्प कंसाइज दे रखा है. अगर टाइम है, थोड़ा एफर्ट लगा सकते हो, फार्मा, पैथोलॉजी को एनोटेट कर लो फर्स्ट एड में, बायोकेम को एनोटेट कर लो और फर्स्ट एड में कंप्लीट हो जाएगी. लास्ट 10 डेज में बहुत हेल्प मिलेगी रिविजन में. ठीक है. सो वन ऑप्शन इज टू स्विच टू रिविजन नोट्स एंटायरली. अदर ऑप्शन इज टू रीड फर्स्ट एड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफ अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के, उनको एनोटेट कर लो फर्स्ट एड में, और फाइनल प्रॉफ सब्जेक्ट्स के लिए रैपिड रिविजन नोट्स पढ़ लो. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड कि थर्ड ऑप्शन है कि आप फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ के लिए फर्स्ट एड पढ़ रखी होगी एंड एनोटेट कर रखी होगी. स्टिक टू दैट. ठीक है. उससे बेटर रिसोर्स कुछ नहीं मिलेगा फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के लिए. आई टेल यू, स्टिक टू दैट. एंड जस्ट अ ब्रीफ रिकॉल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ फर्स्ट एड इज. सो फर्स्ट एड में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है. इन लास्ट 34 डेज में आपको ब्रेथ ज़्यादा कवर करनी है, डेप्थ से ज़्यादा. रिमेंबर दिस. सो फर्स्ट एड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनके ब्रीफ पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे. एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में फर्स्ट एड खोल के रखो जब आप PYQs कर रहे हो. एंड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उनको साथ साथ वहीं लिख लो. जैसे मैंने ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में अपनी टेबल कंप्लीट कर ली थी फर्स्ट एड की. एंड आई न्यू कि व्हेन आई रिवाइज माइक्रो, आई रिवाइज ओनली फ्रॉम दिस. ये कंप्लीट है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना मुझे. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं बाहर से, आई डिड्यूस इट ड्यूरिंग द एग्जाम. ऑप्शन रूल आउट कर लूँगा, रूल इन कर लूँगा, बट मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रखनी है. ठीक है. नाउ फ्यू सब्जेक्ट्स दैट यू कैन अवॉइड. अगर टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो कुछ सब्जेक्ट्स को लात मार दो. ENT, ऑफ्था, पीड्स, रेडियो, एनेस्थीसिया. सब्जेक्ट्स यू कैन नॉट अवॉइड, पढ़ने ही पढ़ने इन लास्ट 34 डेज में: बायोकेम, माइक्रो, फार्मा, अनैट, गाइनी, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथ एंड बायोस्टैट्स. ठीक है. मैंने मेडिसिन नहीं बोला, मैंने सर्जरी नहीं बोला, मैंने पीड्स नहीं बोला. ये जो टॉपिक्स मैंने सब्जेक्ट्स बताए, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं. नाउ इन द लास्ट 10 डेज, 27 अप्रैल हो गई है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 अप्रैल इज ऑल्सो द टाइम व्हेन ज़ैनब इज स्टार्टिंग हर BTR सेशन. सो इट्स ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स कि ठीक है, लास्ट 10 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करना होता है. दे शुड बी फ्रेश इन योर माइंड सो दैट आप एग्जाम में उनकी उल्टी मार के आ जाओ. Recall should be faster, so that you're able to attempt the questions faster
क्वेश्चन पेपर जल्दी ख़त्म होगा, टाइम से ख़त्म होगा, सही चीज़ें याद आएंगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो लास्ट 10 days रिविजन पक्का पक्का ज़रूर करना। सो व्हेन यू स्टार्टिंग, सो एट T-10 days डू पीड्स मेडिसिन इन गायनी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बाद नहीं पढ़ेंगे हम पीड्स मेडिसिन गायनी को। गायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेडिसिन पीड्स का टाइम नहीं है गायनी पढ़ लो बस T-10 days में। बिटवीन T-7 to let's say T-5 और T-8 to T-5 फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ कंप्लीट करो तब, ठीक है। 5-6 days ले लो फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ कंप्लीट करने के लिए, बट उनको तब ख़त्म करो, 5 days ले लो। फिर बिटवीन T-4 टू T-2 या T-5 टू T-2 कंप्लीट माइनर्स एंड सर्जरी। सर्जरी में बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जनरल सर्जरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉमा हेड टू टो पूरा पढ़ना है, एंड इफ टाइम मिलता है थायराइड एंड गॉल ब्लैडर भी पढ़ लेना। एंड लास्ट डे, ठीक है, जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑन 6th May, व्हाट विल यू रीड? यू विल रीड फॉरेंसिक दैट डे, यू विल रीड जनरल फार्मा के फॉर्मूलेज एंड जो उनके ग्राफ्स होते हैं, एंड यू विल रीड बायोस्टैट्स के फॉर्मूले, ठीक है। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम ये 3 चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले मैंने लिस्ट बता दी है कि ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, दिस लास्ट 10 day रिविजन विल डेफिनेटली पक्का हेल्प यू इन द एग्जाम। बहुत रिकॉल होएंगे, यूल बी एबल टू फील कि ये तो मैंने अभी पढ़ा था, हाँ इसका यही आंसर है। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एग्जाम में, अच्छा लगेगा। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि लास्ट 10 day रिविजन स्ट्रैटेजी अपनी बना लो। ड्यूरिंग दिस 34 days प्लीज़ डोंट ट्राई टू रिमेंबर स्टफ एक्टिवली, आई बॉलिंग ही कर लो। लास्ट 10 days में स्पेशली बस आई बॉलिंग करनी है। इन 34 days उससे पहले जो है कंसाइज नोट्स बनाने, इकट्ठा करना है सामान, और लास्ट 10 days में उनको पढ़ना है, दोबारा आई बॉलिंग ही करनी है बस। उस टाइम पे इन माई ओपिनियन कोई चीटीज मत देना, इट डज नॉट हेल्प एट ऑल। इवन इफ यू हैव गॉटन अ गुड रैंक, इट डज नॉट रेप्लिकेट इन द मेन एग्जाम। इफ यू हैव गॉटन अ बैड रैंक इन जीटी, यू विल गेट डिमोटिवेटेड। लास्ट 10 days में नो चीटीज। क्वेश्चंस करने, एक आए नए पेपर कर लो एक दिन में, सुबह उठ के मन भी नहीं करता है पढ़ने का। इफ़ यू आर एबल टू डू 1 पेपर इन द मॉर्निंग, एक मोमेंटम सा बन जाता है, यू गेट बूस्ट कि चलो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। सो टू प्रिपेयर योर लास्ट 10 day strategy, it will definitely help you get a good rank in INI-CT. All the very best for the upcoming exam. You'll rock, don't be afraid, you'll do well, okay? Good luck.